آپ سب لوگ تیار ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت بے عیب رحیم اور جلیل محیب بڑے میٹھے نام میں آپ سب کو سلام. ہالےلویا. دوستو یہ ہے زندہ خدا کی کلیسیا جو کہ بولتی ہے, اور اگر ہم نہ بولیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ پتھر چلانا شروع ہو جائیں گے. دوستو آج کا مضمون جو ہے, آج کا ٹاپک ہے, آپ بہتیرے ہمارے بہن بھائی جانتے ہیں کہ وومن اسپیشل, یعنی کہ ہماری بہن بیٹیوں اور ماؤں کے لیے ایک اسپیشل سا مخصوص کیا ہوا میسج جو خدا نے مجھے دیا میں آپ تک پہنچاؤں گا. اب اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ شاید آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو. اچھا, میں جو سوال کروں گا تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو نیچا دکھا رہا ہوں یا میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. ہم آپس میں بہن بھائی ہیں, یہاں پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. میں آپ سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے سیکھیں گے. تو جو آپ کے سامنے ریئلٹی میں چیزیں ہوتی ہوں آپ بیان کیجئے گا. آپ نے کبھی سنا ہے کہیں کسی چرچ کے اندر, عبادت خانے کے اندر, کہ فیمیلز کو دعا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, یا آیت پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا, یا سامنے پوڈیم پر آ کر کلام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا؟ کیا جانتے ہیں کسی ایسے عبادت خانے کو؟ اور اگر نہیں جانتے تو ان فیوچر آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی. کیونکہ دوستو مخالف مسیح ایسے دھاڑنے والے شیر کی طرح آج ابھر کر ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ وہ ہر ایک خدا کی تعلیم کو خراب کرنے کو ہے. چند ایک آیات لے کر انہیں ایسا توڑا اور مروڑا جاتا ہے کہ خدا کے کلام کی بربادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن خدا ان کی نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے, ان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. لیکن شیطان اپنا کام کیے جا رہا ہے, تو ہمیں بھی خداوند میں مگن ہو کر اپنا کام کرتے رہنا ہے. آج کئی ایسی ڈینومینیشن اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں کہ فیمیلز کلیسیا میں صرف چپ رہیں. وہ نہ آیت پڑھ سکتی ہیں, نہ دعا کر سکتی ہیں, نہ کلام تو بہت دور کی بات ہے. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو آپ سوچیں, جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گناہ اس زمین پر آیا اور ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کا رتبہ آج کے دن میں بھی پاؤں کی جوتی جیسا سمجھا جاتا ہے. ضروری نہیں میں کسی عورت کو بولوں کہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے, یا میں اسے اپنا نوکرانی بنا کر رکھوں. لفظ دوستوں مار ڈالتے ہیں. یہ لفظ ایسے ہیں کہ آپ انہیں ایک اجتماع میں تو لے کر آ رہے ہیں, لیکن آپ انہیں کسی چیز کا موقع ہی نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بائبل مقدس کی آیات کو غلط کوٹ کر رہے ہیں, آپ ان آیات کو غلط مس کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہی جملہ بن جاتا ہے کہ میں نے ابھی بھی عورت کو اپنے پاؤں تلے کی جوتی سمجھا ہوا ہے. او بھائی, آپ پھر ان سے گیت کیوں گواتے ہیں؟ آپ پھر انہیں عبادت خانوں میں بلاتے ہی کیوں ہیں؟ تو نہیں بلائیں. آج سے ہمارے جو پرانے لوگ ہیں, حارث نہیں تھے اس وقت, آپ غالباً جانتے ہیں, وشال, وکاس لوگ, آرنڈ لوگ, یہ سارے جانتے ہیں. تقریباً 1.5 سال پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ کلام کیا تھا. یہی بالکل سیم مضمون یہی تھا, یہی ٹاپک تھا, اور بڑا ہمیں کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا, بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے ایک عورت کو, ایک فیمیل کو, ایک لڑکی کو سامنے لا کے کلام کس طریقے سے کروا دیا, یا کس زمرے سے کروا دیا. عادل کی جو منگیتر تھی. تو دوستو خدا یکساں خدا ہے, خدا سب کے لیے ایک ہے. خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تو پھر انسان کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان ابلیس سے برگلاتا ہے. تو دوستو ہم اس وقت بھی نہیں تھے ڈرے, اور ہم اس وقت بھی نہیں ڈریں گے. اور آپ یاد رکھیے گا, ہماری جو مخالفت کرتا ہے, آج تک 2 سال ہو گئے خداوند یسوع المسیح کے فضل سے مجھے پریچنگ کرتے ہوئے, جتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں, جتنا بھی مخالفت کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے. اس کی جرت نہیں کہ وہ سامنے آ کے ایک لفظ بھی بول دے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو 2 دھاری تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے, اسے چلانا بھی جانتا ہے. ہالےلویا! میرے یسوع کی تلوار کے لیے ایک بار زوردار تالی. ہالےلویا! دوستو آپ کا روب اس سرزمین پر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک فوجی آرمی کا ہوتا ہے. آپ فوج کے آرمی کو دیکھتے ہیں, فوجی جوان کو دیکھتے ہیں, اس کا ایک اپنا ہی روب ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی پرائرٹی ہوتی ہے, اس کی ایک اپنا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ دنیا سے الگ نظر آتا ہے وہ. تو بائبل مقدس تموتھیوس کے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم خدا کے فوجی ہو. ایک سپاہی اگر بارڈر چھوڑ کے, جنگ کا میدان چھوڑ کے دنیا داری میں پڑ جائے
तो फिर तो वो फौजी ना रहा। दोस्तों याद रखिएगा, हम पैदाइशी फौजी हैं, हम पैदाइशी सोल्जर्स हैं। हमें खुदा ने जंग के लिए बनाया है, और जंग किससे है? ना खून से, ना गोश्त से, बल्कि शैतानी टोलों से है, जो नजर भी नहीं आते। आपको पता है हमारा एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी एक एक हरकत पर नजर रखे है। हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन वो हमारी नस्लों को उजाड़ देता है। अब ऐसे दुश्मन के लिए हथियार भी ऐसे होने चाहिए जो नजर नहीं आते। खुदावंद यीशु मसीहा ने कहा कि वो हथियार ले लो जो दायमी है। जो चीजें नजर आती हैं वो बातल है, और जो नजर नहीं आती वो ईमान के वसीला से दायमी है। ईमान नजर नहीं आता, रास्तबाजी नजर नहीं आती, ये फिजिकल चीजें नहीं है। उसके बाद परहेजगारी आप देखते हैं, खुदा की फर्मा बरदारी आप देखते हैं, दो धारी तलवार आप देखते हैं, सुलह की जूती देखते हैं, ईमान की सिपर देखते हैं, और रास्तबाजी का फूट देखते हैं। ये सब के सब हथियार जो हैं ये नजर नहीं आते, लेकिन ये जो शैतान इब्लीस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो मौत को पैदा करता है, उसे चीरने के लिए काफी है। अब जब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो सिस्टर ने बहुत खूबसूरत बात की। आज दिन भी हमारी बहनों का और माओ का है। तो दोस्तों एक बहुत खूबसूरत बात की कोरोना वायरस पे, कि कोरोना वायरस को जब आप देखते हैं तो हम डरते हैं। आपको कोरोना हो भी जाए तो आप बोले मुझे नहीं हुआ। मेरे खुदा ने मुझे इस सर जमीन पर जिंदा रखा। अगर आपके सर में दर्द है तो बोले नहीं है, मेरे यीशु के नाम में ठीक हो गया। अगर आपकी टांग में दर्द है तो बोले नहीं है, मेरे यीशु के नाम में ठीक हो गया। अगर शोल्डर में दर्द है तो बोले नहीं है, मेरे यीशु के नाम में ठीक हो गया। अगर शुगर है तो बोले नहीं है, मेरे यीशु के नाम में ठीक हो गया। अगर हार्ट पेशेंट है तो बोले नहीं है, मेरे यीशु के नाम पे ठीक हो गया। अगर ब्लड प्रेशर के बड़ी से लेके छोटी वबा, लानत या बीमारी में मुब्तला है तो कहिए मुझे इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं। मेरा यीशु मेरे लिए मर गया, उसने मुझे जलाली बदन दिया है। यह बदन एक दिन ढल जाएगा और जलाली बदन आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। ये बीमारियां इस जिस्म पर आएंगी, ये जिस्म कमजोर है और ये शैतान के हाथ में है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उससे मत डरो जो जिस्म को मार सकते हैं, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को आग में डालता है। खुदा से डरिए, और खुदा से डरने की डेफिनेशन बाइबल मुकद्दस खूब फरमाती है। आप अयूब 1 बाब पढ़ ले, उसकी पहली और दूसरी आयत में खुदा से डरने का मतलब है खुदा के हुक्मों को मानना। खुदा से मोहब्बत करने का मतलब है खुदा के हुक्मों को मानना। तो आइए हम अपने सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं कि औरत को खुदा ने एक दर्जा दिया क्या है, हम क्या कहते हैं, और खुदा इनके बारे में क्या फरमाता है। तो हम हमेशा की तरह रवायती जो खुदावंद यीशु अल मसीहा ने हमें सिखाया, पहली आयत मुकद्दसा मरकजी आयत हम लेंगे योएल नबी के सहीफा से, जो कि पुराना अहदनामा तनाख कहलाता है, और दूसरी आयत मुकद्दसा हम नए अहदनामा में से लेंगे जो कि अमाल की किताब में से है। पहला हम आयत मुकद्दसा पहली आयत मुकद्दसा लेंगे योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं से 29वीं आयत तक। और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा। हालेलुया। अमाल की किताब में देखेंगे, हमारी किताब जी अमाल की किताब उसका का दूसरा बाब। दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आपने दोनों आयत मुकद्दसा में पढ़ा, पहले योएल नबी के सहीफे में कि खुदा जब अपनी रूह नाजिल करेगा, तो जब रूह नाजिल करेगा तो वो सब पर नाजिल करेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, या चाहे जवान हो, चाहे लौंडा हो, चाहे लौंडी हो, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। खुदा तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा,
خدا نے کہا میں اپنی روح ہر ایک انسان پر بھیجوں گا. یہ یوئیل نبی کے صحیفے میں ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ کام ہوگا. اب یہ کام ہوا کب؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مقدس پطرس رسول عید پینتیکوست کے دن پر واز کر رہے ہیں, وہاں پر انہوں نے اس پیشن گوئی کو کوٹ کیا اور کہا کہ یہ پیشن گوئی اب پوری ہو چکی, یہ پیشن گوئی اب پوری ہو چکی کہ خدا اپنا روح سب پر نازل کرے گا. وہ لونڈوں پر بھی نازل کرے گا, لونڈیوں پر بھی نازل کرے گا, اپنے بندوں پر نازل کرے گا, اپنی بندیوں پر نازل کرے گا, اپنے بیٹوں پر نازل کرے گا اور اپنی بیٹیوں پر بھی نازل کرے گا. اب جب خدا اپنی بیٹیوں پر روح نازل کر رہا ہے تو دوستو خدا کا روح جب نازل ہوتا ہے تو تب ہوتا کیا ہے؟ آپ چیدہ موٹی موٹی باتیں بتا سکتے ہیں مجھے. جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے تب ہوتا کیا ہے؟ آج فیمیلز بھی ہیں ہمارے ساتھ اور خدا کے کلام کو پڑھتی ہیں, سمجھتی ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بھی سنہری موقع ہے. سمجھے آج آپ کا بھی ٹیسٹ ہے اور میرا بھی ٹیسٹ ہے. جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ دلیری آ جاتی ہے. ویری گڈ. اور نبوت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آہیں بھر بھر کے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, غیر زبانیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خدا کے کلام کی جتنی نعمتیں, جتنے پھل آپ دیکھتے ہیں, جتنی برکتیں, جتنی فضیلتیں اور جتنی رحمتیں ہیں, وہ سب کی سب اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے. تب وہ دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں. اب وہ لڑکوں پر بھی یہ جو لڑکوں پر بھی خداوند اپنی روح نازل کر کے انہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے, اور لڑکیوں پر بھی اپنی روح نازل کر کے انہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے, جو کہ یوئیل نبی اور مقدس پطرس نے فرمایا. اب کن عورتوں پر, اب آج ہم پن پوائنٹ رکھیں گے عورتوں پر, لڑکیوں پر, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کن لڑکیوں اور کیسی عورتوں کے اوپر خدا یہ اپنی روح سونپے گا. یہاں پر تو لکھا ہے ہر بشر پر. کن پر بھیجے گا؟ جی میرے ساتھ آپ سنیے گا بس. پہلا تموتیس اس کا دوسرا باب, یہ کن کے اوپر خدا اپنا روح نازل کرے گا؟ 9ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس. کون سا؟ آپ نے پوائنٹ کرتے جانا ہے, نوٹ کرتے جانا ہے کتنے پوائنٹ ہے. حیادار لباس اور شرم اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو سنواریں, نہ کہ بال گوندنے سے, سونے سے, موتیوں سے, قیمتی پوشاک سے, بلکہ نیک کاموں سے, جیسا خدا ترسی کا اقرار کرنے والی عورتیں کو مناسب ہے. اس کے بعد جب نیچے آپ آتے ہیں تو 15ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اولاد ہونے سے وہ نجات پائے گی بشرط یہ کہ وہ ایمان سے, محبت سے, پاکیزگی سے, پرہیزگاری سے اپنے آپ کو قائم رکھے. دوستو خداوند نے آج دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ جن بیٹیوں پر, جن میری ایسی خادماؤں کے اوپر اپنا میں روح نازل کروں گا وہ کیسی ہونی چاہیے. ایک تو ان کا لباس حیادار ہونا چاہیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں حیادار لباس کیسا ہوتا ہے. ہماری جتنی مائیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں, سبھی نے حیادار لباس پہنا ہے اور یہی حیادار لباس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو بہن بھائی باہر نکل جاتے ہیں فورن کنٹریز کے اندر, ان کے کپڑے ہی بدل جاتے ہیں. اب ان سے بندہ پوچھے کہ تمہیں گوروں نے کہا کہ ایسے کپڑے پہنو, نہیں, وہ تو خود خوش ہوتے ہیں ایسے کپڑے دیکھ کے. لیکن دوستو یاد رکھیے گا انسان کو اپنا آپ نہیں بھولنا چاہیے. دوپٹے کے اندر خدا اپنا روح نازل کرتا ہے, اور جب دوپٹہ ہٹ جائے تو روح بھی ہٹ جاتا ہے. یاد رکھیے گا خداوند روح القدس اپنا نازل کرتا ہے ایمان جو خدا پر رکھتی ہو, محبت جو خدا سے کرتی ہو, پاکیزگی, پاک ہو, اور پرہیزگاری کے ساتھ جو حرام چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کو ناپاک کرتی ہے ان سے پرہیز کرتی ہوں, حیادار لباس پہنے. ایسے 5-6 پوائنٹ ہیں جو خدا سے محبت رکھتی ہیں اور خدا ان پر اپنا روح نازل کرے گا اور وہ خدا کا کام کریں گے. ایکچوئل جب یہ ساری چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو ٹوک الفاظ میں ہم خدا کے منہ کے کلام یعنی یسوع مسیح پر عمل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ لکھا تو بائبل مقدس میں ہے. تو ہم بائبل مقدس میں جب عمل کریں گے تو پاک ہو جائیں گے, اور جب پاک ہوں گے تو خداوند فرماتا ہے میں اپنی بیٹیوں, اپنی بندیوں, اپنی لونڈیوں اور اپنی خادماؤں کے اوپر اپنا روح نازل کروں گا. آپ نے شرائط دیکھ لی کہ کن کے اندر روح نازل ہوگا. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کل سے لے کے آج تک, میں کل آرنٹ بھائی کے گھر پہ بھی کلام کر رہا تھا, کل سے آج تک, کل اور آج کس نے بائبل مقدس پڑھی؟ کل اور آج 2 دن. اب بھائیوں میں سے بھی بتا سکتے ہیں.
کل اور آج 2 دن کس نے بائبل مقدس پڑھی؟ سارے نہیں پڑھی. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاتا ہوں. مجھ سے لوگ چڑھتے کیوں ہیں؟ کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ بیان کرتا ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کہتا ہے مجھ ہرے درخت کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو تم سوکھے کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب جب اس کو بیان کرنے کو آؤ تو لوگوں کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور میں نے اپنے سامنے لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے. تو کیا ہم طرفداری کرنا شروع ہو جائے؟ میرے اپنے گھر کے لوگوں نے نہیں پڑھی بائبل. کیوں؟ فوتگیوں میں مصروف. کیوں؟ آج کاموں میں مصروف. تو بھائی ان سارے کاموں کو تو آپ کر رہے ہو، تو خدا کے کلام کو کون پڑھے گا؟ لیکن جب خدا کا کلام بولتا ہے تب اچھوں کی سروس ہو جاتی ہے. پھر منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اپنے آپ کو سدھاریے، میرا کچھ نہیں جائے گا. پھر ہمیں یہ بھی مصیبت آئے گی، یہ بھی بیماری آئے گی، یہ بھی لعنت آئے گی، یہ بھی ہمارے اوپر مسئلہ آئے گا، یہ بھی آفت آئے گی. تو بولو تو پھر یاد رکھیے گا، خدا کے کلام سے جو محبت نہیں کرتا، جو پڑھتا نہیں، وہ اپنے آپ کو مسیح کہنا شروع نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ہندو یا مسلمان کہہ دے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آخر زمانہ میں ان کی مخلصی ہو جائے گی. لیکن آپ کے اندر میجورٹی مسیحی گریں گے جو سو کولڈ اپنے آپ کو ہونٹوں سے تو مسیح کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں. دوسرے سلاطین 5 باب میں جب آپ پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی قوم کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی قوم کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں. ہم ایک اور لاڈلی قوم کے بارے میں دیکھتے ہیں جنہیں ہمارے اکثریت لوگ تو گالیاں ہی دیتے ہیں، یہودی یا بنی اسرائیل قوم کو دیکھتے ہیں. آپ پہلا سلاطین جب دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو ایک نعمان کوڑی جو شاہ ایران کا بادشاہ تھا، ایک غیر قوم کا بادشاہ تھا، تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو اسیر کیا ہوتا ہے، غلام بنایا ہوتا ہے. وہاں پر اس کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے. غیر قوم کا بادشاہ، غیر قوم کا بادشاہ، لیکن اسے کوڑ کی بیماری ہے. وہاں پر ایک ایسی چھوکری ہوتی ہے، اس کی عمر نہیں لکھی لیکن سندھی لفظ ہے یہ چھوکری. اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ ٹین ایجرز میں آتی ہے، جسٹ لائک یہ چھوٹی بچیاں. ایسی بچیاں تھیں جو اسیر تھیں. اس بچی نے کیا کہا کہ اے نعمان کوڑی، میرے گاؤں میں یا میرے دیہات میں یا میری قوم کے اندر ایک ایسا نبی ہے جو تجھے اس بیماری سے شفا دے سکتا ہے. اس بچی کے اندر کس کی روح تھی؟ خدا کی روح تھی. اسے کیا پتا ہو کون کیا ہے، لیکن خدا اس کے اندر بولا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچی کا دل صاف تھا. وہ بچی خدا سے محبت کرتی تھی غلام کی نسل، لیکن محبت خدا سے کرتی تھی. آج ہم تو آزاد اپنے پیارے ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بائبل پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے سے فرصت نہیں. یہ غلام کی نسل کو دیکھیے کیسے خدا کا روح اس پر نازل ہوا اور کہتی ہے اے نعمان کوڑی، میرے آقا تو جا میرے گاؤں میں، میرے علاقہ میں جا، وہاں پر خدا کا سورما علیشا ہے جو تجھے کیا دے گا؟ شفا دے گا. اب جب وہ شفا لینے جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اس سنیریو کو، آپ پورے سرمن کو جانتے ہیں. جب وہ جاتا ہے شفا لینے سے شفا بھی ہو جاتی ہے. اب شفا ہونے کے بعد وہ بادشاہ ہوتا ہے، اسے نذرانہ دینا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا نذرانہ، مجھے اپنے خدا کے حیات کی قسم میں نذرانہ نہیں لوں گا. پھر وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو نذرانے لے، سونا چاندی شاہی لباس ہوتا ہے، یہ لے لے. وہ کہتا ہے میں نذرانہ نہیں لوں گا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر جب وہ نذرانہ نہیں لے رہا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اے خدا کے بندے، مجھے اپنی اس دھرتی کی مٹی دے دے، مجھے مٹی دے دے تاکہ میں اس مٹی کو اکٹھا کر کے اپنے شاہ ایران کے اندر لے کے جاؤں، اور وہاں پر جو میرے بادشاہ ہیں، سوری یہ لشکر کا یہ سورما تھا اور فوجی لشکر کا ایک سپہ سالار تھا. یہ کہتا ہے کہ مجھے مٹی دے دے تاکہ جہاں شاہ ایران کے اندر غیر اقوام کے معبودوں کو پوجا جاتا ہے، غیر اقوام کے خداؤں کو پوجا جاتا ہے، میں اس مٹی سے جا کے تیرے یہوہ خدا کا مذبح بناؤں گا اور اس مذبح پر یہ کہوں گا کہ یہ مذبح اس خدا کا ہے، یہ سوکتری قربانی اس خدا کی ہے جو اس کائنات میں واحد خدا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ ایک بچی کے لیے، ایک بچی کے واسطے، ایک ایسی لڑکی کے واسطے یہ پاسبل ہوا کہ وہ خدا کے جا کے
कलाम को आगे पेश करे, और जब खुदा का कलाम आगे पेश हुआ तो दोस्तों अगर खुदा अलीशा को कहता तू नजराना ले ले तो वो ले लेता, लेकिन खुदा ने उसे मना किया था नजराना ना लेना। उससे हुआ क्या? वो मट्टी लेकर गया, नजराना तो उसे नहीं मिला, लेकिन आप रिजल्ट देखिए, उस बच्ची की वजह से वहां से मट्टी उठाई, गैर कौम के अंदर मजबा बनाया और गैर कौम के अंदर यहोवा खुदा की मुनादी की गई। एक बच्ची के जरिए खुदा अपने रूह का इस्तेमाल करता आया है, हमेशा से करता आया है। आप नसबनामों में देखते हैं यीशु मसीह के 4 खवातीन का जिक्र है, लेकिन मैं आपके सामने 2 खवातीन को रखता हूं। राहब फाहशा जो पहले फॉर्मर थी, उसके बाद राहब नाम हो गया, और साथ में आप रूत को देखते हैं। आप रूत को काफी लोग बाखूबी जानते होंगे, वो मुकद्दसीन के दादे पड़दादों दादियों पड़दादियों में से थी। कौन कौन से मुकद्दसीन के दादियों पड़दादियों में से थी? मुकद्दस दाऊद और मुकद्दस सुलेमान बादशाह की दादियों पड़दादियों में आती थी। ये रूत थी कौन? इसीलिए कह रहा हूं अपने आप को हिंदू मुसलमान कहना शुरू कर दे। ये गैर कौम की थी, ये मुआब की थी, जिसको खुदा इतनी गलत नजरों से देखता था, जिसको खुदा नफरत करता था, क्योंकि ये कौम बनी इसराइल पर चढ़ाई करते थे। लेकिन दोस्तों ये औरत को देखिए, ये गैर कौम की औरत थी और अपनी सास नायोमी को कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू रहेगी मैं तेरे साथ रहूंगी। अगर तू मर भी जाए तो मुझे भी वही दफन करना, अगर तू जिंदा रहे तो मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि आज से लेके अब तक जब हम मर नहीं जाते हमें मौत जुदा नहीं कर सकती। मैं तेरे साथ रहूंगी क्योंकि तेरा खुदा मेरा खुदा है। ये गैर कौम की औरत थी, और जब गैर कौम की औरत खुदा पर ईमान लाती है तो दोस्तों याद रखिएगा उसके अंदर से मसा पैदा होता है, अनॉइंटिंग पैदा होती है। अनॉइंटिंग कैसे पैदा हुई? उबैद से शादी हुई, सॉरी बोइस से शादी हुई, बोइस के बाद उनसे उबैद पैदा हुआ, उबैद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ। यह मुकद्दस सुलेमान और मुकद्दस दाऊद नबी की दादियों परदादियों में आती हैं। थी कौन? गैर कौम, लेकिन खुदा का रूह इसके अंदर काम करता था। क्यों? क्योंकि ये खुदा को वक्त सबसे ज्यादा देती थी। इसको पता था अगर मैंने कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तो सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तू अपने सारे दिल अपनी सारी जात ताकत अकल से खुदा को प्यार कर, नौकरी को प्यार ना कर, माँ को, बहन को, भाई को, दोस्तों को, घर को प्यार ना कर, खुदा को प्यार कर। जितना टाइम आप दूसरे कामों को देते हैं उससे ज्यादा टाइम खुदा को दीजिए। इस औरत को यह पता था, इसने खुदा पर अमल किया, और यह गैर कौमों में से खुदा अपने लोगों को चुन लेता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में लिखा है कि बहुतेरे अव्वल से आखिर और बहुतेरे आखिर से अव्वल हो जाएंगे। हम जो अपने आप को अव्वल कहते हैं, याद रखिएगा हम आखिर हो जाएंगे, और आखिर जो गैर कौमें हैं वो आगे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत के नाम पर जब ईमान लाते हैं तो वो प्रीचिंग करना शुरू हो जाते हैं। आप हमारे क्रिश्चियंस को देखिए, जो मुसलमान या हिंदू होते हैं उन्होंने कभी प्रीचिंग की है, लेकिन मुसलमानों को देखिए जो क्रिश्चियन होते हैं, आज दुनिया में उनका नाम है। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं, फिंगर टिप्स पे नाम गिनवा सकता हूं कि कैसे कैसे खुदा के सूरमा जो गैर कौम से मसीहियत में आए और उन्होंने ऐसा जलाल पाया क्योंकि उन्होंने अपने जिस्मों से खुदा को जलाल दिया, और आज वो इस सरजमीन पर लाखों जानों को बचाने का वसीला बने हुए हैं। लेकिन हमारे जब जाते हैं दूसरी कौम में, एथे भी बेड़े गरक त्योथे भी बेड़े गरक। क्यों? क्योंकि करतूते ना यहाँ पर सही ना वहां पर सही। उसके बाद अब देखते हैं राहब फाहशा को। ये थी फाहशा, ये थी जिस्म फरोश। क्या थी? जिस्म फरोश एक औरत थी। जब इसने देखा कि यहोवा खुदा की मुनादी की जा रही है, यहोवा खुदा को कैसे मिस्र के अंदर से खुदा ले आया अपने जोरे बाजू अपने ताकत से, तो इसने भी खुदा पर ईमान लाया, और खुदा पर ईमान लाने के साथ साथ अपने अमाल से भी दिखाया कि मैं खुदा की बंदी हूं। मुकद्दस यशवा ने जब 2 ऐसे इन्फॉर्मर्स को भेजा कि जाके देखो कि यरूशलेम में क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पर उसने उन 2 लोगों को बचाया, और आज वो भी यीशु मसीह के नसब नामे, यीशु मसीह की दादी परदादियों में उसका नाम आता है। गैर कौम की रूत और गैर कौम की राहब फाहशा जो जिस्म फरोशी करती थी, और आज यीशु मसीह की नस्ल में उसका नाम है। ये औरत थी क्या? ये खुदा के साथ चलने वाली औरतें थी। ये औरत थी क्या?
खुदा के किताब मुकद्दस को पढ़ने वाली, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाली, इस पर अमल करने वाली औरतें थी। उसके बाद जब आप देखते हैं, हमने तीमुथियुस के खत में खूब पढ़ा कि कैसे खुदावंद किन पर अपना रूह नाजिल करेगा। आप औरतों की लिस्ट को देखते जाए, आस्तर मलका की लिस्ट को आप देखिए, खुदा के कलाम में आस्तर मुकद्दस आस्तर मलका को देखिए, कैसे वो खुदा के नाम पर झुकती थी वो भी गैर कौम के अंदर असीर गुलाम। हम आजाद हैं। आपको पता है हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर आप प्रीचिंग नहीं कर सकते, जहां पे आप इस तरह जमा होकर मुकद्दस मजमा नहीं लगा सकते। लेकिन ये तो असीरी की नस्ल में है, ये तो गुलाम की नस्ल थी, इनकी नस्लें ही गुलामी के अंदर चलती आ रही है, और खुदा इन्हें इकबालमंद करता है, इन्हें बरोमत करता है, इन्हें सरफराज करता है गैर कौमों के अंदर। और जब आप देखते हैं दोस्तों खुदावंद इन्हें सरफराज करता है, तो इसी की कौम के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने को है, जो 50 हाथ बड़ी सूली है, जिनके ऊपर मुर्दगी को, यानी कि इनके चाचा को, इन्होंने अपने चाचा की बेटी को लिया होता है और अपनी बेटी बनाकर, दूसरे लफ्जों में इनके बाप को लटकाया जाना था। अब दोस्तों मुकद्दसा आस्तर को खुदा के सूरमा ने कहा, मुर्दगी ने, कि देख खुदा ने तुझे गैर कौमों के सामने इस्तेमाल करने का एक मौका दिया है, खुदा ने तुझे गैर कौमों के सामने इस्तेमाल करने का एक मौका दिया है, और अगर तू ये मौका गवा भी दे, अगर तू खुदा का काम ना करे, अगर तू खुदा का हुक्म ना माने, तो कोई मसला नहीं, खुदा ऐसा सूरमा पैदा करेगा, इन पत्थरों को बोलेगा कि अपनी कौम को बचाए, और वो कौम को बचा लेंगे। लेकिन आस्तर मलका ने अपनी कौम को बचाया। हालेलुया। कैसे? 3 दिन 3 रात रोजा रख के, और जो अपनी सहेलियां थी उन्हें भी बोला 3 दिन 3 रात रोजा रखो। वो रोजा नहीं जो इंसानी रोजा है, रात को खाया सो गए और सुबह उठ गए, दोपहर को उठ गए तो पता नहीं क्या क्या होता है। बाइबल मुकद्दस का जो रोजा है, बाइबल मुकद्दस का रोजा 3 दिन 3 रात, और उनकी साथ में सहेलियों को भी कहा। खुदा ने उसकी बात को सुना और पूरी की पूरी कौम को बचा लिया। साढ़ी खवातीन ने कभी किसी बचाया? रूहानी बात कर रहा हूं। हम में से कितने हैं जो कलाम की प्रीचिंग करते हैं? कितने हैं जिन्होंने रूहों को मौत के शिकंजे में से निकाला है? कितनी हमारी बहन बेटियां हैं जिन्होंने जलते हुए तीरों को रोककर अपने हस्बैंड को, अपने मियां को, अपने भाई को, या अपने बेटे को, या अपने रिश्तेदारों को बचाया हो, कलाम सुना के। याद रखिएगा, अपने आप को अगर मसीही कहना है तो मसीही का मतलब है मसीहत को अपना लेना। मसीही लफ्ज का क्या मतलब है? मसीही लफ्ज का तो हम कल मतलब जान चुके, मसा किया हुआ। मसीही लफ्ज का क्या मतलब है? सो कॉल्ड जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही लफ्ज का क्या मतलब है? मसीही लफ्ज का मतलब है मसीह के साथ चलने वाला। मसीह के साथ चलने वाला। मसीह की चाल चलन कैसी थी? वो इसको नहीं थे पढ़ते, वो इसको आगे पेश नहीं थे करते। तो समझिएगा इस बात को। मुकद्दस याकूब रसूल कहते हैं अपने आप को धोखे में मत रखो, अपने आप को धोखे में ना रखो, वरना मर जाओगे, फिर हमेशा की आग है। फिर सोचते रहोगे कि एक बंदा था जो हमारे सामने बोलता था, लेकिन हमने उसकी नहीं सुनी, कि काश उस वक्त सुन लेते। याद रखिएगा, खुदावंत के पास ये सारी विजुअल्स हैं, वो आपको दिखाएगा कि तू मुकर नहीं सकता। इस बात से मुकरेगा, तुझे हर एक चीज के बारे में बताया गया है। जब आप नए अहदनामा में आते हैं, मुकद्दसा मां मरियम के ऊपर, मुकद्दसा मां मरियम की जब आप स्टडी करते हैं, गालिबन मैं मां इसलिए कह रहा हूं कि अम्मा हवा हमारी मां है, अम्मा रिबका हमारी मां है, अम्मा आस्तर मलका हमारी मां है, अम्मा राहब हमारी मां है, अम्मा रूथ हमारी मां है। इसीलिए मुकद्दसा मां मरियम भी हमारी मां है। सलाम मरियम दुआ करने वाली बात नहीं कर रहा, ये तो बाइबल से बाहर है। समझ गए आप मैं क्यों मां कह रहा हूं? जैसे हम बाप दाऊद को, बाप इब्राहिम को बाप कहते हैं, वैसे ही हमारी ये मां हैं जो रूहानियत में चलती आ रही हैं। मुकद्दसा मां मरियम ऐसी खुदा की सूरमा थी, ऐसी खुदा की सूरमा थी, उनके अंदर कोई ऐब नहीं था पाया जाता। ऐसी खुदा की सूरमा जो कि गैर अकवाम हमारे मुसलमान भाई उन्हें इतने पाक अल्फाजों से पुकारते हैं कि आपका दिल खुश हो जाए। हफीफा मरियम, हबीबा मरियम, पाकीज़ा मरियम, मुकद्दसा मरियम, नबिया मरियम। ऐसी खुदा की सूरमा जिसमें गुनाह का कोई हेर फेर ही नहीं है, जिसमें गुनाह का उसे पता ही नहीं है गुनाह होता क्या है।
اس کے اندر خدا کا روح کام کرتا تھا. مقدسہ ماں مریم کے اندر خدا کا روح کام کرتا تھا. جب خدا کا روح کام کیا تو خدا نے اتنی بڑی بلیسنگ دی, اتنی بڑی بلیسنگ دی. خدا نے یسوع نام کو اپنے نبیوں سے چھپایا, اپنے سورماؤں سے چھپایا, اپنے رسولوں سے چھپایا, اپنے پیغمبروں سے چھپایا, انبیاء مرسلین, انبیاء اکبر, انبیاء اصغر سے چھپایا. کسی سے کوئی پوچھتا تھا خداوند بتاؤ اس کا نام کیا ہوگا, وہ کہتا ہے رحیم و کریم. کچھ کہتے ہیں خداوند اس کا نام کیا ہوتا, یسایہ پوچھتا ہے بتاؤ اس کا نام کیا ہوگا جو کماری سے پیدا ہوتا. خداوند کہتا ہے اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. لیکن نام کسی پر ریویل نہ کیا. نام کیا تو کیا ایک عورت کے اوپر, ایک لڑکی کے اوپر, ایک کنواری کے اوپر. اے کنواری مریم, جو تجھ سے پیدا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا. ہلیلویا. میرے یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. تالیاں ذرا دب کے بجاؤ. یہ 10 سارا تاب اوپر آسمانوں پر بھی بجایا جاتا ہے. ہلیلویا. ایسی خدا کی سورما جس میں گناہ نہیں پایا جاتا. ہم نے تموتھیوس کے خط میں 5 ایسی وجہیں دیکھی جن کے اوپر خدا اپنا روح نازل کرتا ہے. پرہیزگاری, خدا سے محبت, خدا پر ایمان, حیادار لباس. یہ دوستو بہت ضروری چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب جاتے ہیں, مقدسہ ماں مریم کی ہی بات کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ایسے ہی پاک مجمع, پاک محفل کے اندر کلام سنا رہے ہوتے ہیں. تو جب کلام سنا رہے ہوتے تو پیچھے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, مبارک ہے وہ رحم جس سے تو پیدا ہوا, مبارک ہے وہ رحم جس سے تو پیدا ہوا, مبارک ہے وہ بطن جس کے اندر تو رہا. میں کہتا ہوں مبارک ہے وہ انسان جس کے اندر سے سورما پیدا ہوتے ہیں, مبارک ہے وہ انسان جس کے اندر سے نبی پیدا ہوتے ہیں, مبارک ہے وہ انسان جس کے اندر سے یوحنا استقباغی پیدا ہوا, مبارک ہے وہ انسان جس کے اندر آنے والے 2 گواہ مکاشفہ 11 باب کے پیدا ہوں گے, مبارک ہے وہ انسان جس کے اندر سے یسوع مسیح کی طرح آج سورما پیدا ہوتے ہیں. ہلیلویا. ایسی عورتوں کو ہمارا سلام ہے. یہ خدا کی سورمائیں جو بائبل مقدس کے اندر ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کئیوں نے تو ان کے نام بھی پہلی بار سنے ہوں گے, اور نام اگر سنے ہیں تو ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, 4-4, 5-5 باب کی, آپ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھے گا کون, کون پڑھے گا؟ ہم نے آج تک کبھی اپنی ماں کو 1 گھنٹہ کلام سنایا ہے؟ ماں کے ساتھ گھر میں رہتے کتنی دیر ہیں؟ اب اس طرف آ جاتے ہیں. بھائی کو, بہنوں کو کبھی آدھا گھنٹہ کلام سنایا ہو؟ کبھی بیوی کو 5-10 منٹ کلام سنا دیا ہو؟ نہیں دوستو, ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کرونا آ گیا, راشن اکٹھا کر لو, کرونا آ گیا, یہ کر لو, کرونا آ گیا, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے وہاں جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. او بھائی خدا کے کلام کو پکڑ. خدا کہتا ہے میں تجھ میں مسرور اور تو مجھ میں مسرور ہے. بابا, بیماری, لعنت تجھے ٹچ بھی نہ کر سکے گی. تیری دائیں طرف 1000, تیرے سامنے 10,000 گرے پڑوں گے, لیکن لعنت, بیماری تجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے گی. ہلیلویا. لیکن کلام کو پڑھیں گے تو تبھی سنائیں گے. کلام کو پڑھیں گے, سیکھیں گے تو تبھی سنائیں گے. دیکھیے کیسے مقدسہ ماں مریم کو جلال دیا جا رہا ہے, اور عورت بولتی ہے یسوع مسیح کو مبارک ہے وہ رحم جس سے تو پیدا ہوا. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ حارث بھائی کے لیے زوردار تالیاں. اس سے بھی زیادہ وہ مبارک ہے جو میرے کلام کو پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے. سننے کا نہیں لکھا, سننا بھی ہے, لیکن میں اگر کوئی الٹا سیدھے سنا دوں آپ کو, لکھا ہوا ہمارے بہن بیٹیاں بچے سارے پڑھے لکھے ہیں. کسی کو بھی پکڑ کے بولو 5 منٹ بائبل پڑھاؤ, وہ آپ کو منع نہیں کرے گا. یہ خدا کے جلال ایسا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھتا, سنتا اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے بھی زیادہ, وہ اس سے بھی زیادہ جس کے میں رحم میں رہا, مجھ سے نہیں, اس سے بھی زیادہ جس کے میں رحم میں رہا, وہ زیادہ مبارک ہے. دوستو یاد رکھے گا, یسوع مسیح تو خود اس کو پرائرٹی دے کے چلے گئے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا, میں تو خود جسم ہوں, لیکن میں روح القدس میں ہو کے ان کے ساتھ رہوں گا, اور روح القدس اس کے اندر ہوگا جو اس پر عمل کرے گا, اور جو اس پر عمل کرے گا اس کے اندر خود خدا ہو کر کام کرے گا. دوستو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں
खुदावंद यसू अल मसीहा की 3 रिश्तेदार भी थी। जब खुदावंद यसू अल मसीहा को सूली दी गई तो नीचे कितनी मरियम थी? कौन कौन सी थी? एक उनकी माँ थी, एक उनकी फूफी थी, एक माँ थी मरियम, एक खाला थी मरियम कोलोपास, और तीसरी मरियम मगदलीनी जो उनकी शागिर्दा थी। ये खुदा की सूरमाएं सारे भाग गए। लोग कहते हैं औरत मुनादी नहीं कर सकती, लोग कहते हैं औरत प्रीचिंग नहीं कर सकती। ओ भाई, औरत की लड़की की, एक फीमेल की जुर्रत देखो, दलेरी देखो। सारे शागिर्द भाग गए, वो नीचे खड़ी हुई हैं, वो मरने के लिए तैयार है। एक औरत की जुर्रत को देखिए, एक औरत की हिकमत को देखिए, एक औरत की हिम्मत को देखिए, एक औरत की दलेरी को देखिए। सारे रसूल भाग गए जिनके साथ खुदा 24 घंटे रहता था। 3.5 साल उसने मुनादी की, लेकिन औरत की जुर्रत को देखिए, औरत की ताकत को देखिए, वो जान देने के लिए भी तैयार है। आज हमारी बहन बेटियां यस्सु के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये बाइबल यस्सु है, इसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो जान कहां से देंगे इसके लिए? सारे झूठे इकट्ठे हुए पीछे से, हाँ हाँ। और भाई इसको पढ़ते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या, तो कैसे जान देंगे? जान उसके लिए दी जाती है जिसके बारे में कुछ पता हो। खुदा ने अपना बेटा उनके लिए कुर्बान किया जिसे वो जानता था। पूरी कायनात को उसने अपने हाथों से रचा है। वो ऐसी थोड़ी ना किसी को जानते मुंह उठा के ऐसी जान दे दी। हिकमत से भी सोचना है। पढ़ते नहीं इसको तो जान कहां से देंगे? अभी ये कोरोना चल रहा है, सबसे जान निकली हुई है, बस सबका पता चल रहा है कौन किसके लिए जान दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीहा ने, आप देखते हैं कैसे बरकतों से नवाजा। औरत को एक छोटा दर्जा दिया, उस वक्त भी जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन खुदा ने उन्हें ऐसी बरकत दी कि कायनात में सबसे पहली मुनादी, सिस्टर ने खूब फरमाया कि कायनात की सबसे पहली मुनादी, जो ऐसी मुनादी है हमें मौत से बचाती है, जो ऐसी मुनादी है अगर आपने गुनाह पर गुनाह किए हैं, अगर आपने हजारों गुनाह किए हैं, अगर आपने करोड़ों गुनाह किए हैं, मैं आपको आज दावे से कहता हूं, मैं आज आपको चैलेंज देके कहता हूं, मैं आज आपको शर्त लगा के कहता हूं, अगर आप गुनहगार हैं, सबसे बड़ा गुनाह वो है जो बाइबल नहीं पढ़ता। अगर आप गुनहगार हैं, सबसे बड़ा गुनाह वो है जो हर रोज दुआ नहीं करता। अगर आप गुनहगार हैं, आपके सामने कोई अदालती तख्त नहीं है, आपके सामने कायनात का कोई तख्त नहीं है, आपके सामने कोई इंसाफ का तख्त नहीं है, आपके सामने तख्त है तो जिंदा खुदा यीशु मसीह का तख्त है, जलाली तख्त है। उसके सामने आइए, तौबा कीजिए, खुदा आपकी नस्लों के गुनाहों को भी माफ कर देगा। हालेलुया। खुदावंद जुर्रत रखता है कि आपकी नस्लों के गुनाहों को भी माफ करे। तो ये तो गुनाह कुछ भी नहीं है। खुदावंद के सामने रोइए, रातों को गिड़गिड़ाइए। बहुत खूबसूरत कहा मारिया ने कि जब खुदा का रूह आता है तो आहें भर भर के हमें दुआ करना सिखाता है, हमें रुलाता है। अथरू पावे एक ना डिग्या है साडा, कभी किस किस का दुआ में अथरू डिगा है? आप, ये आपका सीक्रेट भी है, खुदावंद आपको बरकत दे जिनके साथ ये होता है। तो जब रोते हैं तो उस रोने की गैरत को भी अपने अंदर महसूस करें। बाइबल में लिखा है अगर तू बार बार गुनाह करेगा तो मैं तेरी बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। इब्रानियों के खत में लिखा है अगर तू जानबूझकर गुनाह करता है, अगर तू जानबूझकर गुनाह करता है तो उस पाक रूह को नीलाम करता है, खुदा के फजल को अपने पैरों तले रौंदता है और पाक खून को नापाक करता है। और मैंने आपको बताया, मैं आपके पर्सनल गुनाहों पर नहीं जाता, मैं 2 गुनाहों की बात करता हूं जो सबसे बड़े गुनाह हैं। जो 24 घंटे में बाइबल नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, इस गुनाह की मुआफी इस कायनात में है ही नहीं। जल्दी से काउंट करें, लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं? मेल कितने, फीमेल कितने? 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमाल की किताब जब आप पढ़ते हैं, जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा का रूह नाजिल हुआ तो 120 की जमात में से चंद औरतें थी। कितनी थी? चंद औरतें थी। क्या उन पर खुदा का रूह नाजिल नहीं हुआ? उन पर भी खुदा का रूह नाजिल हुआ। उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की, प्रीचिंग की। और आज आप इबादत खानों में जाकर देखिए, आज इबादत खानों में जाकर देखिए, खुदा ने औरत को, फीमेल को, लड़कियों को इतनी कुदरत, इतनी इज्जत बख्शी है। लड़कों की तादाद कम, मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज्यादा होती है। आप यहीं से हिसाब लगा लें, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, खुदावंद अपने लोगों को इज्जत देना चाहता है। आप फिलिप्पस की 4 बेटियों को देखें, थी वो
कुंवारियां थी, लेकिन दोस्तों खुदावंद की नबियां थी। नबूवत करने वाले का सिर्फ ये काम नहीं कि वो पेशन गोइयां बताए या नबूवत आने वाले वक्त का बताए। नबूवत का मतलब एक और भी है, अगर ओरिजिनल मतलब पढ़ें तो नबूवत का मतलब है खुदा का कलाम पेश करना, क्योंकि नबूवत करना बाइबल में से ही लिया जाता है। ये खुदा का कलाम पेश करती थी चारों। आज हम कैसे किसी लड़की किसी औरत को कहते हैं कि आप कलाम पेश नहीं कर सकती। दोस्तों याद रखिएगा, ये काम जोर पकड़ते जा रहा है। आप शायद किसी और डिनोमिनेशन में ना जाते हो, लेकिन मैं अक्सर जाता रहता हूं और ये खबरें मिलती रहती हैं। इन खबरों से बचिए, ये बहुत ही खतरनाक खबरें हैं और आप इन खबरों से अपने आप को अलर्ट रखिए। खुदावंद औरतों को हमेशा इज्जत देता रहा है और इज्जत देता रहेगा। मैं आपसे आखिरी बात करूंगा कि खुदावंद ने अपने लोगों के लिए जान दी। खुदावंद ने अपने लोगों के लिए जान दी। और दोस्तों आप देखते हैं कि खुदा की बेटियों ने भी अपनी जान देने के लिए दरेकना किया। किसी को मालूम है ऐसी कोई आयत मुकद्दसा बाइबल में से कि किसी बेटी ने खुदावंद के लिए जान दी हो? आज सामने तो कोई भी नहीं होगी, मैं गारंटी से कहता हूं। कोई बाइबल में आप किस्सा जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी सूरमाएं हो जिन्होंने, ऐसी बेटियां हो, प्रीचिंग करते करते अपनी जान दी हो? आप सुनिएगा गौर से, अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने ने, मैं दोबारा से पढ़ दूं, पहली आयत से सुनिएगा। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उसके दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीके पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। ख्वा मर्द ख्वा औरत उनको बांध कर कहां पर लाए? यरूशलेम में लाए। बांध कर, कैसे लाए? बांध कर। उसके बाद आप 8वें बाब की तीसरी आयत में देखते, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता रहा। कभी किसी को घसीटते हुए देखा है आपने? एक औरत है, उसके हाथ भी बंधे हों और उसके पैर भी बंधे हों और उसके बालों से पकड़ के उसे घसीटा जाए। रियलिटी में कभी नहीं देखा होगा, और जब देख लेंगे तो क्या होगा? इंसान की रूह कांप जाती है। इंसान का जिगर जो है वो मुंह को आने को होता है। इंसान का दिल फट जाएगा कि कैसे एक लड़की का, एक कुंवारी लड़की का, एक औरत का जो बच्चों वाली है, बाजू बांधे हो, टांगे बांधी हो और उसके बालों से पकड़कर उसे खींचा जाए। किसके लिए? यीशु की प्रीचिंग के लिए। किसके लिए? यीशु की मुनादी के लिए। किसके लिए? यहोवा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम को आगे करने के लिए। दोस्तों ये बाइबल की वो औरतें हैं जो यीशु मसीह के नाम पर अपनी जानें निसार करके बैठी हुई हैं, लेकिन आज हम यीशु को पढ़ते ही नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस यीशु है, हम इसे जानते ही नहीं है, हम इसे पढ़ते ही नहीं है, तो हम कैसे दे सकते हैं जान? आप देखते मुकद्दस एलिया को, मुकद्दस तिशबी एलिया जो है, एलिया तिशबी जब एक बेवा के पास जाते हैं, आप सभी बाखूबी वाकफ हैं इस स्टोरी से कि जब वो एक बेवा के पास जाते हैं तो बेवा को जाके कहते हैं, खुदावंद कहता है कि जाके इनके साथ रह, तो क्या होगा? तेरे को वो शेर करेगी, तेरी नशोनुमा करेगी। आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में उस वक्त जो खुदावंद ने काल डाला हुआ था, और वो काल ऐसा था कि दोस्तों लोग कौवे की बीट खाते थे पैसे देकर, और गधे का सर खाते थे पैसे देकर। कौवे की बीट और गधे का सर खाते थे पैसे देकर। क्यों? क्योंकि खुदा ने 3.5 साल तक क्या डाला हुआ था? काल। काल में क्या होता है? जैसे सिस्टर ने बात की टिड्डियों की, टिड्डियां सारे अनाज को क्या करती हैं? खा जाती हैं। तब आटा नहीं होता, चीनी नहीं होती, कोई भी काश्तकारी का ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस दुनिया के अंदर नहीं होता। उस वक्त खुदावन ने अपनी ही कौम को ऐसी सजा दी कि काश्तकारी का कोई सिस्टम नहीं था। अब काल पड़ गया तो खाना तो कुछ है। ऐसे ऐसे वाक्यात है बाइबल मुकद्दस में। इस काल में कितने लोगों को गर्मी लग रही है? कितने लोग परेशान हो गए? नहीं होइएगा, बैठे रहिएगा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। उसने हमारे लिए
वहां पर जान दी जहां जिथे शिखर दोपहर से और छलनी होया थी पूरा दिन। लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदावंद आपके लिए मुहैया करेगा। याद रखिएगा, खुदावंद ऐसी ऐसी काल पड़ा वहां पर कि पैसे नहीं थे, पैसे देकर लोग क्या कर रहे, गधे का सर खा रहे और कबूतर की बीट खा रहे हैं। गधे का सर खा रहे और कबूतर की बीट खा रहे हैं। अब जब गधे का सर खा रहे और कबूतर की बीट खा रहे हैं, एक केस ऐसा भी होता है कि दो औरतें अपने बच्चों को कहती हैं कि आज मैं अपने बच्चे को काट के खाती हूं और कल तू अपने बच्चे को काटना, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। और अखियाब अपने कपड़े फाड़ देता है। ऐसे ऐसे केस हुए। वो लड़ किस बात पे रही होती हैं कि मैंने तो आज अपने बच्चे को काट के हम लोगों ने खा लिया, आज इसकी बारी है, तो इसने अपने बच्चे को क्या किया, छुपा दिया। तो वो बादशाह के पास ये केस लेकर जाती हैं। जैसा लानती बादशाह वैसी लानती काबीना। किसी ने उर्दू में खूब कहा है कि जिंद दे जिंद दिया रूआ उंज दी उन्हों दे फरिश्ते। अब वो बादशाह भी लानती, उसकी काबीना भी वैसे लानती। और जब बादशाह मुकद्दस हो, मुकद्दस सुलेमान जैसा, तो याद रखिएगा उसके पास केसेस भी ऐसे आते हैं कि खुदावंद दो टोक अल्फाजों में उसका रिजल्ट निकालता है और खुदावंद का नाम जलाल पाता है। वो अखयब तो था ही खुदा के सूरमाओं का ऐसा दुश्मन कि उन्हें निकाल निकाल कर मारता था। अब याद रखिएगा, हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। खुदावंद ने काल जब डाला मुकद्दस एलिया तिशबी की मानद, और क्या हो गया, पैसे देकर कबूतर की बीट खाई जा रही है, पैसे देकर गधे का सर खाया जा रहा है और अपने बच्चों को काट कर खाया जा रहा है। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये दिन वापिस आएंगे। काल का आपने छोटा सा ट्रेलर देख चुके हैं। खुदा से दूरी रखेंगे तो एक दिन आप भी अपने बच्चों को काटेंगे, मैं भी अपने बच्चों को काट के खाऊंगा। और अगर हम कहते हैं ना नहीं, तो हम झूठे हैं, क्योंकि हम इसको जानते ही नहीं है, खुदा को, बाइबल को जानते ही नहीं है। खुदा आपके हाथों से ऐसे काम करवाएगा कि आप खुद खुदा के नाम पर कुफर बकना शुरू कर देंगे। ये खुदा की लानत ऐसी है अपने ही लोगों पर, जो पहले भी आती थी, अब भी आती है और आगे भी आने वाली हैं। अब हुआ क्या, खुदा ने एलिया तिशबी को कहा कि तू नाले में से निकल और इस औरत के पास जा, सारपत की बेवा के पास जा जो सैदा में रहती है, वो तेरी नशोनुमा करेगी। एक सवाल है यहां पर, उसने उस औरत के पास ही क्यों भेजा? आप दोनों जवाब ही दीजिएगा। औरत के पास ही क्यों भेजा? मैं जानता हूं आप बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन सुनिएगा। औरत के पास, उस औरत के पास क्यों भेजा? वो औरत को जब खुदा ने कहा, आप बखूबी जानते, आप जानते इस कहानी को, खुदा के सूरमा ने जब उस औरत को कहा कि मेरे लिए रोटी ला, तो उस औरत ने क्या कहा? बहनों में से आज वुमेन डे है, मर जाएंगे। नोट कीजिएगा इन अल्फाजों पर, एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल बनाकर मैं और बेटा खाकर मर जाएंगे। खुदा ने उस औरत के पास इसलिए भेजा, वो किसी और के पास भी भेज सकता था, वो उनके पास भी भेज सकता, जो गधे का सर खा रहे, वो उनके पास भी भेज सकता था, जो कबूतर की बीट खा रहे, वो उन औरतों के पास भी भेज सकता था, जो अपने बच्चों को काट कर खा रही है। लेकिन दोस्तों, खुदा ने उस औरत पर अपना नूर नाजिल किया, खुदा ने उस औरत पर अपना बेटा नाजिल किया, खुदा ने उस औरत पर अपना मुकद्दस इब्राहिम, मुकद्दस सुरमा एलिया नाजिल किया, जो कि खुदा के हुक्मों पर चलती थी, खुदा से मोहब्बत रखती थी, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखती थी। और मोहब्बत क्या रखती थी? उसने हराम चीजों को खाना पसंद ना किया, उसने अपने बच्चे को मार के खाना पसंद ना किया, उसने गधे के सर को खाना पसंद ना किया, उसने कबूतर की बीट को खाना पसंद ना किया। उसने कहा मेरे खुदा ने इनको कहा ये हराम है, मैं ना खाऊंगी, मैं ये रोटी जो मेरे खुदा ने मुझे दी मैं आज खाऊंगी और कल मर जाऊंगी, लेकिन हराम चीजों को ना खाऊंगी। मेरे खुदा ने मुकद्दस को भेजा और उसके घर से ना आटा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ। हालेलुया! करे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऐसी औरतें होनी चाहिए जो खुदा के हुक्मों पर चलें। हुक्मों पर आप तभी चल सकते हैं जब आप खुदा को जानते होंगे, जब आप बाइबल को जानते होंगे। नहीं जानते तो पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा मिशनें हैं। कितने हजार से? और पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा। सोचें किस किस का यीशु सच्चा है? सिर्फ ये यीशु सच्चा है, बाकी सब पर यीशु हैं। याद रखिएगा, मिशन हमें नहीं बचा सकती, बचा सकता है तो खुदा का कलाम बचा सकता है। हफ्ते में एक बार जाके अपने आप को गुमराह मत करें, इसको रोज पढ़ें। जो रोज नहीं पढ़ता
24 घंटे में एक बार नहीं पढ़ता, वो तो उसकी तो मौत वाक़या है, वो जिंदा चलता फिरता लाश है। और उसके लिए आज एक तौबा करने का मौका है, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। आपने बहनों को देखा, मैं आपके सामने एक इंसानी पेशन गोई रखता हूं, सॉरी टेस्टमनी रखता हूं, गवाही। अमेरिका में आप देखते हैं लड़के और लड़कियां इकट्ठे काम करते हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। अमेरिका में आप देखते हैं लड़के और लड़कियां इकट्ठे काम करते हैं, इंजीनियर जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर थी एक लड़की, उसकी शादी हुई, उसका एक बच्चा था गालिबन 4 से 5 साल का। अब मैकेनिकल इंजीनियर वो इस तरह की थी कि आपने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में या नेशनल जियोग्राफिक पे देखा होगा, बड़े बड़े क्रूज, बड़ी बड़ी कश्तियां जाती हैं और सामने एक पुल सा लगा होता है, और वो पुल इस तरह खुलता है, बीच में से इस तरह खुलता है, और वो जब कश्ती निकल जाती है तो वो पुल फिर से इस तरह जुड़ जाता है और ऊपर से ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाती है। किसी ने देखा है? हाथ खड़ा करके बताइए किसने देखा है? फिल्मों में देखा है, ये रियलिटी में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा ही पुल है और खड़ा होता है और इसमें से कश्तियां आती जाती हैं और ये फिर बैठ जाता है और ट्रैफिक चलना शुरू हो जाती है। इसका एक टाइम लिमिट फिक्स होता है, सबको पता है, कभी वहां एक हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक हादसा हुआ दोस्तों। उसको परमिशन दी गई कि आप अपनी बच्ची को ला सकती हैं। आप अपनी बच्ची को क्या कर सकती है? ला सकती है, क्योंकि घर में ऐसा प्रॉब्लम था, घर पे कोई नहीं था, तो उसने परमिशन मांगा कि मैं ड्यूटी पे अपनी बच्ची को ला सकती हूँ। अब वो थी मैकेनिकल इंजीनियर। अब मैकेनिकल इंजीनियर इस टाइप की थी कि उसने ऑटोमेटिक बटन को दबाना होता था और वो पुल क्या होता था, खुलता था टाइमिंग के हिसाब से। आप सोच सकते हैं जैसे 6 घंटे की ड्यूटी है तो हर 2 घंटे के बाद उसको बटन दबा के उसको खोलना पड़ता था, क्योंकि कश्तियां हर 2 घंटे के बाद आती जाती थी। अब जब ये खुलते थे पुल, तो यहां पर इनके इंजन में गरारियां लगी होती थी। इंजन में क्या लगी होती थी? गरारियां लगी होती थी। वो बच्ची खेलने के लिए एक बॉल भी ले आई, उसने कहा चलो खेलो आप जाके, मैं अपना काम कर लूं। अब दोस्तों हुआ कुछ इस तरह, वो बच्ची उसको नजर नहीं आ रही, वो बच्ची उसको नजर नहीं आ रही। गौर से सुनिएगा इसको, ये औरतों के लिए है। वो बच्ची उसको नजर नहीं आ रही, वो बच्ची खेलते खेलते उस गरारियों के अंदर चली गई। किसके अंदर चली गई? उस बड़े बड़े घर से भी बड़ी गरारी आती है। आपको पता कितना बड़ा रोड उठाना होता है, और वो गरारियां चक्के कितने बड़े होंगे, वो इस घर से भी बड़े बड़े चक्के थे, उनके अंदर जाके वो धस गई, फंस गई। अब सामने से कश्ती भी आ रही है। अब 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो बटन दबा के उस पुल को खोले और वो कश्ती निकल जाए, और अगर बटन ना दबाएगी तो क्या होगा? वो कश्ती उससे टकराएगी और सब के सब लोग मर जाएंगे। अब वो लोग थे क्या? सारे के सारे नशाई, एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कश्तियों पर पार्टीज चलती हैं, दारू चलता है, लड़का लड़के डांस करते हैं, और अजीब फहाशी का एक सिलसिला होता है। वो देख रही है तो फहाशी कर रहे हैं, और मेरी बच्ची गरारियों में फंसी हुई है। अगर मैं बटन दबा के इस पुल को खोलती हूं, ये लोग निकल जाएंगे, लेकिन मेरी बच्ची के चिथड़े उड़ जाएंगे, मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरी बच्ची जिबा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसने ये भी सोचा कि दफा करो, इनको मरने दो। ये है क्या? गंद का ढेर ही तो है, सारे सारे नशई तो हैं, सारे गुनाहगार ही तो है, इनको मरने दो, मैं अपनी बच्ची बचाती हूँ। लेकिन दोस्तों उस वक्त उसके जहन में ये आयत आई, जो आयत इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती, जो लिखी जाती, जो सुनी जाती, जो सुनाई जाती, यूहन्ना 3:16 आयत के खुदा ने इस दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और हलाक ना हो। दोस्तों खुदा की वो आयत जब उसके जहन में आई तो उसने कहा नहीं, मैं इनको बचाऊंगी, मैं इनको बचाऊंगी। उसने बटन को दबा दिया। दोस्तों वहां पर जब वो पुल खुला तो आप सोच नहीं सकते, उस बच्ची के चिथड़े उड़ गए, उस बच्ची के सैकड़ों टुकड़े हो गए, उसके सामने उसकी बच्ची मर गई। लेकिन वो लोग चले गए। अब वो लोग भी परेशान थे कि पुल खुल क्यों नहीं रहा। अब जब ऐन वक्त पे खुला वो सब डर गए, खुदा का नाम लेना शुरू हो गए। लेकिन जैसे पुल से बाहर गए फिर वही नशा फहाशी शुरू। और आप देखिए वो औरत जिसके सामने उसकी बच्ची के टुकड़े पड़े हुए, वो जोर से चिल्लाई, वो जोर से चिल्लाई और कहती है कि मैंने अपनी बच्ची को तुम्हारे लिए कुर्बान किया, लेकिन तुम फिर वही गुनाह में धंसे हुए हो। आज खुदा कहता है कि मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए बख्श दिया, तुम फिर वही गुनाह में धंसे हुए हो। क्या खुदा जो पैदाइश की किताब में, मुकाशफा की किताब में, तस्निशना की किताब में लिखा है अपनी लानतें, अपनी आफतें और बीमारियां हम पर नाजिल ना करेगा? वो औरत इतना चिल्लाई तो सोचिए ऊपर जो बेगुनाह खुदा है, जिसको गुनाह का पता ही नहीं, जो पूरी कायनात को खिलाता है, वो अपने इकलौते बेटे को जब हमारे लिए मरवा डालता है तो क्या सोचता होगा?
وہ کتنا چلایا ہوگا. تو دوستو یاد رکھیے گا, اپنے آپ کو بدلیے, اپنے آپ کو توبہ کے زمرے میں لائیے. جیسی آپ کی زندگی پرانی تھی مسیح کو قبول کرنے کے ساتھ ویسی ہی ہے تو آپ مسیحی نہیں ہیں, آپ کوئی غیر قوم ہے لیکن آپ کو اس قوم کا نام نہیں پتا. یہ بائبل کہتی ہے. مسیحی ہونے کے لیے اپنی زندگی کو مسیحی طرز زندگی پر لائیے, مسیح کے ساتھ چلیے, ورنہ خدا کا کلام تو دو ٹوک ہے, یہ تو صاف الفاظوں میں سب کچھ بتا دیتا ہے. بہنیں تمام, ہماری آج جو وومنس ڈے ہے, آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ